Hello everyone, waiting for Pandit Ji to join us and then we can go for today's chat. Namaskar Pandit Ji. Namaste. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine as well. Okay, so a lot of people have already joined. Should we do a quick sound check for the playing parts and all? Yeah. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. That's perfect. Perfect. Tabla. Okay. Can you hear Perfect. tabla also? Yes, I can. Okay. Okay, then I guess I'll begin the chat then at 9:30. Yeah. Yeah, okay. So, hello everyone. Welcome to the 19th episode of Our Talks of Music. Today we have with us Pandit Milind Raikridji. And before we get into the conversation, I would like to give a brief intro about Pandit Ji. He is a Hindustani classical violinist from Goa. He is a disciple of Kan Saraswati Kishori Amonkar Ji and Pandit Diya Datta Ji. He is the founder of Riker Academy of Violin and Colors of Violin. He has completed Grade 4 in violin from the Trinity College of Music, London, under Professor A.P. Da Costa, and he performs all over the globe. So, firstly, Panditji, thank you so much for accepting my invitation and giving me your time for today. Yes, thank you. Thank you. My pleasure. Okay, and now before the talking begins, so let's hear something. Oh, you want me to play something in the beginning? Yeah. Yeah, I'll play a small piece of Rag Malkovs. प्रोग्राम this is a bandish which was taught to me by my Guruji Pandit K. Dattaji, and I would also like to add something that you have briefed about my biodata. That my first guru was my daddy, Pandit Achyut Raikar. Then I learned from Pandit B.S. Mutt from Dharwad. Then Pandit Vasantrao Kadnekar from Goa. And Western teacher was Professor A.P.D. Costa. And thereby I kept on listening and learning from many other gurus.
वाह, क्या बात है. And the overflood of hearts in the comment sections also a wonderful beginning indeed. Thank you. Thank you. Okay, so Panditji, I'd like to know initially what is your first memory of holding the violin? It was my daddy who insisted me to play and learn violin because he was हम लोग क्या बोलते हैं उसको, स्वर के जो भक्त रहते हैं ना, उनमें से थे. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के भक्त थे और हमेशा चिंतित रहते थे कि अपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का आगे क्या होगा, कि सब जगह पे डिस्को चल रहे हैं, रॉक एंड रोल चल रहे हैं, तो एक अच्छा सा सुर जिसमें सच्चा सुर हो वैसा इंस्ट्रूमेंट बजवाने के लिए मेरे से उन्होंने वायलिन सिखवाया. और उसके लिए मेरा गिटार विटार वो सब बाजू में रखकर बोले कि यू मस्ट कैरी अहेड आवर हिंदुस्तानी क्लासिकल कल्चर. So I learned Western music, and the first song that I played on violin was एक प्यार का नगमा, शोर पिक्चर. और मुझे अभी भी याद है जब मैंने बजाया था तभी मुझे 10 रुपया बख्शिश मिला था. 1979-80 की बात है. Quite long time. Okay. तो फिर आप वेस्टर्न की तरफ भी गए, तो फाइनल डिसीजन कैसे बना कि अब क्लासिकल को ही मुझे आगे बढ़ना है? हाँ वही तो, मतलब वेस्टर्न सीख रहा था और मेरे ट्रिनिटी कॉलेज का भी चल रहा था. मैं गोवा के मशहूर हमारा ऑर्केस्ट्रा था जिसमें अच्छी आमदनी भी हो रही थी और मेरा बैंड था मिलिंद रायकर एंड हिज बैंड करके, उसका ये भी चल रहा था, क्या बोलते उसको, नाम भी हो रहा था. तो पिताजी ने मेरे सोचा कि ये अगर यही करते रहा तो इसका फ्यूचर में उनका सपना पूरा नहीं होगा. एक हाँ, वो मुझे देखना चाहते थे कि मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल वायलिनिस्ट बनूं. और हाँ, और इसकी वजह से उन्होंने मुझे बोले कि बाबा चलो अभी बहुत हो गया तुम्हारा गिटार विटार, तो या तो एक टॉप गिटारिस्ट बन के दिखाओ, नहीं तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कलाकार बन के दिखाओ. हालांकि मेरा दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा था, इधर ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, गिटारिंग चल रहा था और ये बाजू में मेरा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम भी चल रहे थे. मगर ही वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी वेरी हाई ऊपर. एंड एक्चुअली वी वर नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली. तो उन्होंने बोला कि यू डोंट वरी अबाउट मॉनिटरी थिंग, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ये देखूंगा कि आपका पेट भरेगा और आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, मगर आप पूरा डेडिकेट करके वायलिन सीखो. So that's how I came to Bombay after getting the scholarship from Kala Academy. Okay. And Trinity College फिर आप कब गए थे? वो ट्रिनिटी कॉलेज का 1984 या 5 की बात थी. ट्रिनिटी कॉलेज गोवा से ही बैठा था मैं, उनके एग्जामिनर आ जाते हैं.
ओके ओके। तो आपकी तालीम शुरू हुई आपके पिताजी से इनिशियली, तो फिर आप दूसरे गुरु की तरफ कब गए और कैसा था वो? वो धारवाड़ के गुरुजी थे मेरे, बीएस पंडित बीएस मठ जी। हम्म वहाँ के किस्से अच्छे हैं, क्योंकि सवेरे हमको कभी 6 बजे उठने की आदत नहीं होती थी बचपन हम्म में। तो उनके घर में जब जाता था तो मैं 6 बजे मुझे वो उठाते थे, रियाज के लिए बिठाते थे और बोलते थे कि ये रियाज करते रहो, मैं ऑफिस हम्म में जाके आता। तो ही वॉज एन ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट, so he used to अच्छा। go to his office in the all India हम्म radio, and I used to keep practicing violin. तो ऐसे एक 8 8 10 दिन चलता था अच्छा। उनके पास। हाँ। ओके, तो फिर आप पंडित डीटी तत्त जी के पास कब गए? 85 86 में स्कॉलरशिप मिला मुझे और तो बॉम्बे में आ हम्म गया पंडित डी के दत्ता जी हम्म के पास। हम्म ओके, तो कोई ऐसी कहानी उनके साथ आप शेयर करना चाहेंगे? हमारे दातार गुरु जी बहुत महान गुरु है, और वो ज्यादा बात नहीं करते थे। एज फार एज अगर किसी की तारीफ करना हो तो मुंह हम्म पे कभी तारीफ नहीं करते थे। वो हमारे दोस्तों को या और तीसरे जगह पे बोलते थे कि मेरा एक स्टूडेंट है मिलिंद रायकर, गोवा से आया है, बहुत अच्छा वायलिन बजाता है, मगर मेरे सामने कभी तारीफ करके बताया नहीं कि आप अच्छा बजा रहे हो। एक ही याद है मुझे, मेरा 2000 1996 में कॉन्सर्ट हुआ था बॉम्बे में। तो वो प्रोग्राम के लिए मुझे पहले उन्होंने बोला कि मैं आने वाला नहीं हूँ, मेरा बेस्ट विशेस है आपके साथ। तो मैं एक तरफ से मुझे हल्का भी लगा कि ठीक है वो नहीं आने वाले, तो टेंशन नहीं है ना बजाने की। तो बाद में प्रोग्राम खत्म होने के बाद मुझे आके मिले हो, तो उन्होंने क्या किया था, प्रोग्राम में आ गए और एकदम पीछे के सीट में जाके बैठे ताकि मुझे टेंशन ना आए बजाता हुआ। अच्छा। हाँ, ओके। कोई प्रेशर ना आवे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बुजुर्गों के सामने बजाना है तो टेंशन आ जाता है, एंड देन वायलिन अच्छा नहीं बज, मतलब कुछ गड़बड़ ना हो, इसके लिए वो आके पीछे बैठे और प्रोग्राम खत्म होने के बाद मुझे ऐसा किया कि अच्छा बजाया। और घर में आके मेरे से, हाँ मेरे से ज्यादा तारीफ अपने मिसेस के पास किया। मिली ने एकदम, मतलब मेरे, मैं जो सिखा रहा हूँ उसी लाइन पे चल रहे हैं उस हिसाब से। ओके, तो आपको वो तारीफ मिल जाती थी फिर? हाँ, कभी कभी मिल जाती थी, मगर अच्छा लगता था बाहर से जब पता चलता था, मगर सामने से कभी नहीं बताया। ओके ओके, तो फिर आपकी मुलाकात किशोरी हम उनके जी से कैसे हुई? अ, वो भी एक्चुअली 1996 में ही हुई। एक ऐसा हुआ था कि मेरा प्रोग्राम टीवी पे चल रहा था, राग हंसोदनी चल रहा था, और उसके 1 2 महीना पहले मैं किशोरी दीदी से मिला था, और दातार दातार गुरुजी के फेलिसिटेशन के सिलसिले में मुलाकात हुई थी। किशोरी दीदी के हाथ से हमने दातार गुरुजी का सत्कार किया था, तो उस बहाने किशोरी दीदी से मिलने का मौका मिला। तो उसी पहचान का मैंने थोड़ा सा फायदा उठा के उनको फोन किया और रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा परफॉर्मेंस देखोगे जो टीवी पे चल रहा है। तो बोले ठीक है, देखती हूँ। उन्होंने तुरंत देखा और बाद में मुझे बोला कि अपने हौसों ने बहुत अच्छा बजाया, मगर उसमें निशात कैसे लगाने का ये मैं आपको सिखाऊंगी, आप मेरे पास आना सीखिए। सो मेरा रास्ता खुल गया उधर जाने का, और उन्होंने ही दातार गुरुजी को बोल दिया कि मिलिंद को आप मेरे पास भेज दो ताकि मैं उसको जयपुर की गायकी सिखाऊंगी। ओके, क्योंकि और फिर ऐसा कैसे होता है ना, चला फिर? हाँ तो ऐसा होता है कि एक गुरुजी के पास आप जब सीखते हो तो एक साथ दो गुरुजनों के पास सीखना वैसा मुमकिन नहीं होता है, कि दोनों विचार अलग अलग होते हैं। बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है।
कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अगर दोनों दोनों गुरु जो जनों का अगर प्रोग्राम एक ही दिन हो गया तो क्या करेंगे, आप इधर जाओगे कि उधर जाओगे? तो वो सारी राइट। चीजें ध्यान में रखते हुए वो डिफिकल्ट था। ओके। मगर उसके गुरुजन गुरुओं ने मुझे संभाल लिया। ओके, कैसे? जैसे कि एक प्रोग्राम था किशोरी दीदी का 9 जून को, 9 जून 1999 में। ओके। ओके। तो वो प्रोग्राम था बॉम्बे के एक अलग कोने में, मतलब जो मेन सिटी बोलते हैं ना, वहां पे प्रोग्राम नरीमन नरीमन पॉइंट में प्रोग्राम था। और उसी वक्त 7 बजे दातार गुरुजी का दूसरे कोने में प्रोग्राम था, दहीसर करके जो जगह है। तो दोनों का प्रोग्राम एक साथ, और दीदी ने मुझे बोल दिया कि कल आपको वायलिन लेके उधर आना है। और पहले दातार गुरुजी का प्रोग्राम लिया था मैंने, ऑलरेडी एक्सेप्ट किया था। तो मैंने दीदी को बोल दिया कि अम, मुझे ऑलरेडी मेरे गुरुजी का प्रोग्राम है। तो बोले कि चिंता मत करो, आप बोलो उनको कि मेरा प्रोग्राम है तो वो आपको छोड़ देंगे। मगर ये बोलने के भी थोड़ा डर लग रहा था मुझे। तो दादाजी के पास ऐसा हाथ जोड़ के मैंने प्रार्थना की कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो दीदी का प्रोग्राम है तो मैं क्या करूं? तो बोले कि अच्छा, उनका प्रोग्राम है, ठीक है, तुम उधर जाओ, खाली आके मेरे पास मेरे साथ रहो, मेरी पूरी तैयारी करो 1 घंटा पहले, और बाद में उधर जाओ। आपको उधर 7 बजे पहुंचना है, मुझे मुझे इधर 7 बजे शुरू करना है, आप 6 बजे उधर से निकलो। तो उस हिसाब से मैंने पूरा स्टेज के ऊपर उनकी तैयारी किया, उनका सब साउंड बैलेंसिंग वगैरह देखा, और मैं दीदी के प्रोग्राम के लिए गया। तो इस हिसाब से दोनों गुरु ने मुझे बहुत संभाल लिया है। हाँ, उन्होंने बैलेंस बहुत मेंटेन किया आपके लिए। हाँ। ओके। तो मिलन जी, आपको कैसे लगता है आपकी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग में आपको हेल्प किया है ये वायलिन को आगे बढ़ाने के लिए? वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट और वेस्टर्न म्यूजिक की जो नॉलेज है ना, वो मुझे कंपोजिशन करने के लिए बहुत फायदेमंद हुआ है। ओके। और हाँ, और ऐसा भी है ना कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी कई जगह पे वेस्टर्न म्यूजिक का भी फायदा होता है। जैसे कई फ्रेजेस होते हैं जो कॉर्ड कॉर्ड के हिसाब से होता है, वो जाने अनजाने में बजवाए जाते हैं। मतलब वेस्टर्न करके नहीं बजाते, बजाते तो हिंदुस्तानी करके, मगर उसका वो फायदा ले सकते हैं, और मैं बहुत बार उसका लेता हूँ। अच्छा, ओके। तो फिर आपकी एकेडमी जो ऑर्केस्ट्रा है कलर्स ऑफ वायलिन, उसका कैसे जन्म हुआ? मेरे एकेडमी का एक स्टोरी बता देता हूँ मैं, उसके बाद मैं कलर्स ऑफ वायलिन के बारे में बात करूंगा। लखनऊ में मेरे गुरुजी पंडित डी के दातार जी का कॉन्सर्ट था, ऑल इंडिया रेडियो का। बहुत ही बढ़िया बजाया, बहुत ही बढ़िया बजाया, मतलब ऐसा कि एक अलग ही सिचुएशन में लेके गए कि मैं तो सोचता रहा कि ऐसा वायलिन हमारे जिंदगी में कभी बजेगा क्या, इतना बढ़िया बजाया। और हमेशा हमारे दातार गुरु जी हमेशा शाम को या अर्ली मॉर्निंग में वॉकिंग के लिए जाते थे। तो मैं उनके साथ वॉकिंग के लिए गया। तो मैंने उनको बोला कि आज का प्रोग्राम तो बहुत ही बढ़िया हो गया, कि हम हैरान हो गए कि हमारे हाथ में ऐसा वायलिन बजेगा कि नहीं। तो मुझे उन्होंने अपने बचपन की स्टोरी बता दी। बोले कि देखो, आज जो तुमने वायलिन सुना, आप जिस हिसाब से रियाज करते हो, वही अगर करते रहोगे तो जरूर आपका वायलिन ऐसे बजेगा। मगर एक आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि पहले के जमाने में, मतलब लेट अस से 1940s 1950s या 1930s में वायलिन अलग ढंग से बजता था, जिसमें मिंट कम रहती थी, गमक कम रहती थी। पूरा बोइंग का अगर आपने अभी नोट किया होगा तो देखिए, मैंने जो वायलिन बजाया उसमें मेरा बोइंग ऐसा सलग पूरा कंप्लीट जा रहा है, ऐसा ऐसा कट कट शॉट नहीं हो रहा है। तो पहले के जमाने में थोड़ा सा बोइंग का स्टाइल अलग होता था। तो बोले कि तभी ऐसा बजाते थे।
तो गायकी उसमें दिखती नहीं थी, एक अलग ढंग का इंस्ट्रूमेंटलिस्ट टाइप गायकी होती थी। तो मैंने उसको इस लेवल पे लेके आया हूँ कि उसमें मिंड हो, गमक की तान हो और गाने जैसा वो बजे। तो यहाँ तक मैंने लेके आया हूँ मैं। अभी इसके आगे लेने का काम आपका है। तो जब मैंने वो सुना तो मैंने मन में ठान ली कि कुछ तो ऐसा करना है जहाँ से मैं बच्चों को ट्रेन कर पाऊँ। और इसकी वजह से मैंने एकेडमी का स्थापना किया, जो पंडित डीके दातार परंपरा, रायकर एकेडमी ऑफ वायलिन, पंडित डीके दातार परंपरा, ऐसा करके वो पूरा नाम है जी। और उसको दातार गुरु जी का आशीर्वाद भी मिला है, उनके हाथों से ओपनिंग हुआ था। और उनके समक्ष हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए। मेरे बच्चों का भी प्रोग्राम उन्होंने देखा, बच्चे जो बजा रहे हैं उनका प्रोग्रेस कैसा होता है वो भी उन्होंने देखा। तो बहुत खुश होते थे मेरे बच्चों को देखकर, वायलिन के स्टूडेंट को देखकर। तो एक बार ऐसा हुआ कि कई जो बच्चे होते हैं ना, उनको मोटिवेट करना पड़ता है वायलिन सीखने के लिए। इजीली बजाने के लिए कंटाला करते हैं, रियाज करने के लिए कंटाला करते हैं। तो मैंने एक उसमें सोचा कि अगर इन बच्चों को एक साथ अगर मैं लाऊं और एक साथ अगर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिसमें ये बच्चे लोग स्टेज के ऊपर परफॉर्म भी करेंगे, उसकी वजह से उनका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, उसकी वजह से वो लोगों के सामने भी आ जाएंगे। ऐसा सोच के मैंने एक गाना बना दिया। एक गिटार सीखने के लिए आते थे मेरे पास, तो उनका नाम आदित्य था। तो एक गाना बना दिया, एकदम सिंपल बना दिया। वो गिटार के ऊपर भी बजा सकते थे और बच्चों को भी उसका नोटेशन लिख के दिया। तो वो गाना बच्चों को सिखाया, तो बच्चों ने प्रैक्टिस किया। बाद में मेन गाना होने के बाद थोड़ा सा उसमें डिफिकल्ट पार्ट डाल दिया, तो उसकी वजह से प्रैक्टिस करना शुरू हो गए। ऐसे करते करते एक गाना, बाद में दूसरा गाना, बाद में फोक म्यूजिक, बाद में क्लासिकल म्यूजिक, बाद में मराठी नाट्य गीत, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, ओल्ड फिल्म सॉन्ग्स, न्यू फिल्म सॉन्ग, ऐसा करके एक पूरा 8-10 वैरायटी उसमें रखा। और इसके लिए उसको कलर्स ऑफ वायलिन नाम रखा कि वायलिन के ऊपर क्या क्या बजा सकते हैं। तो वैसे उसमें बजवाया। और आप मानोगे नहीं, इस कलर्स ऑफ वायलिन की वजह से मेरे पास बच्चे तो 30, 40, 50 तक बच्चे थे, तभी भी थे, अभी भी है। तो मगर वो बच्चे लोग जैसे एसएससी हो जाता है ना, बच्चे लोग वायलिन छोड़ देते हैं। तो हाँ, मगर इस कलर्स ऑफ वायलिन की वजह से बच्चों ने वायलिन बजाने में इंटरेस्ट ज्यादा ले लिया। अगर आपको टाइम है तो मैं एक गाना उसमें से बजवाना चाहता हूँ, जो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। बिल्कुल। Power on. Bluetooth mode. मैं बीच में से लगा रहा हूँ उसको। ठीक है।
यहाँ पे मुझे सब वेस्टर्न म्यूजिक का फायदा हो गया। रिदम पैटर्न, बेस गिटार पैटर्न, वेस्टर्न कोऑर्डिनेशन। इसका एंडिंग आप देख लीजिए। क्या बात, क्या बात, रियली। थैंक यू भाई। ये आपको क्यों सुनाया? ये इसमें इसमें इतने सारे रन है और इतना फास्ट स्पीड में बजता है। इसमें पूरा वेस्टर्न टेक्निक वाला ही सब चीजें, मतलब बोइंग के लिए टेक्निक है, लिगाटो वायलिन बोइंग टेक्निक है, और फिंगरिंग टेक्निक है। पोजीशन चेंज हो जाते हैं, बैकग्राउंड अलग बजा हुआ है। तो ये सारे प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे लोग मजबूर होके प्रैक्टिस किया है। इसकी वजह से बच्चों के हाथ में वायलिन अच्छी तरह से बज पाया। वाह। तो इस कॉम्पिटिशन का नाम क्या है? इसका कॉम्पोजिशन का नाम है वॉरियर। वॉरियर, इंटरेस्टिंग नेम। तो लाइक इसमें वायलिन के साथ और क्या क्या ऐड हुआ? बेस गिटार है, ड्रम सेट है, तुम्बा है, और रिदम गिटार है। ओके, तो ये कलर्स ऑफ वायलिन बेसिकली एक मोटिवेशन है और वो पुश है बच्चों के लिए, राइट? एकदम। ओके, तो अब आप अपने गायकी अंकीय स्टाइल के बारे में थोड़ा समझाइए ना। गायकी मतलब गायन, Okay. जो गले से आता है वो वायलिन पे आना चाहिए। ये उसका इन शॉर्ट उसका मतलब है। अभी जैसे हम लोग अगर गाते हैं, जैसे अभी मैंने मालकोस बजाया था, अगर इतना लंबा अगर बजाना है तो हमको वो कितना बड़ा चाहिए? कैन यू हियर? वॉइस कट हो रहा है। हाँ, वॉइस कट हो रहा है।
मुझे मेरे बेटे ने बता दिया। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है। देखो किधर कट नहीं हुआ। अगर यही मैं अगर इस हिसाब से बजाऊं क्या कुछ फर्क समझ में आया आपको? हाँ, तो इसमें थोड़ा कट हुआ, ब्रेक हुआ आई गेस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ओके। गाने में गला गला ऐसा कट होता नहीं है। तो कट नहीं होता है, उस हिसाब से वायलिन बजना चाहिए। ओके। ओके। ऑलराइट। तो स्टाइल के लिए तो आपसे बहुत लोग एडवाइस मांगते हैं, राइट? हाँ जी। स्टाइल के लिए बहुत लोग ही आपसे एडवाइस मांगते हैं, राइट? हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ, तो ये अब कैसे प्रोग्रेस हो रहा है? लाइक आप इसके लिए ट्रेनिंग कैसे देते हैं? ट्रेनिंग्स के लिए एक तो अभी आजकल ऑनलाइन सब सीखना चालू हो रहा है बच्चों का। और हम्म। माई गुरुकुल ऐप करके है। विवेक सोनार मेरा दोस्त है, पंडित विवेक सोनार। उसमें मेरा वायलिन सिखाने का क्लासेस चालू किया हम्म। ओके, तो अब आप है। अपने देश इनमें। विदेश, हाँ देश बताइए। विदेश के लोग बच्चे लोग सीखते हैं। हम्म। या, ओके, तो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है ये। ओके। ओके, तो अब आप अपने इन्वेंशन के बारे में बताइए, जो वायलिन स्टैंड आपने इन्वेंट किया है। जैसे बैठने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक डिवाइस कर दिया है जहाँ पे जहाँ पे ये देखो, ऐसा मैंने स्टैंड बना दिया है। ओके। यहाँ पे मैं वायलिन रखता हूँ ताकि मेरा बैकबोन सीधा हो जाए, नहीं तो ओके। ऐसा बैंड हो जाता है। तो इसके लिए वायलिन रख के तो यू कैन रिलैक्स योर लेग, यू कैन स्ट्रेटन योर लेग एंड यू कैन प्ले आराम से। 2 घंटे के बजाय 8 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। हाँ, नहीं तो आपके नीज दुखते हैं, कमर में दर्द होता है, नेक पेन हो जी। सकता है विद द ओरिजिनल, जी। क्योंकि विदाउट स्टैंड यू हैव टू सिट लाइक दिस। तो देखिए कितना बैंड हो गया है, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और इसकी वजह से बहुत सारे जितने हाइट में बड़े लोग हैं ना, उन लोगों ने वायलिन अभी वापस स्टार्ट भी कर दिया है सीखना। ओके, तो ये आपने कब इन्वेंट किया था? ये किया था 1996-7 में। ओके, तो इस डिवाइस का कोई नाम है? वायलिन स्टैंड, बस। ओके। नहीं, इतना कुछ सुना नहीं है इसके बारे में एक्चुअली। मैं एडवर्टाइजमेंट करता नहीं हूँ इसकी। अच्छा। मैं ओके। मार्केटिंग नहीं, जो लोग आजकल टीवी पे या यूट्यूब पे देखते हैं और बाद में मुझे कांटेक्ट करते हैं वायलिन के स्टैंड के बारे में। ओके, तो उनको पता कैसे चलता है इसके बारे में? नहीं, जिनको जिनको बैक पेन है और जो हम्म। वायलिन स्टैंड देखते हैं वो खुद होके फोन करके और मेरे से मंगवा लेते हैं। ओके। जैसे कलकत्ता में 2-3 कलाकार ले लिए हैं स्टैंड। ओके। ओके। ओके, तो अब आप अपने सोशल वर्क के बारे में कहिए। आप अमन पेन में हर साल जाते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ करने के लिए? मैं एक्चुअली क्या है, मेरा संगीत जो है एक ईश्वर सेवा करके मैं समझता हूँ। और अगर संगीत में अगर किसी को 2 पल का अगर आनंद मिले तो क्यों ना बजाऊं। उस हिसाब से मैं ओल्ड एज होम में बजाता हूँ, फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों को उनके लिए बजाता हूँ, फिर कैंसर पेशेंट्स के लिए बजाता हूँ। कैंसर पेशेंट अनाम प्रेम करके यहाँ पे एक संस्था है बॉम्बे में, उनकी तरफ से भारत में कई जगहों पे, कश्मीर से लेके मद्रास तक कैंसर पेशेंट्स के लिए प्रोग्राम किया है।
ओके। और उनमें से कोई सीखने के लिए इंटरेस्टेड हुआ था? हाँ जी। उनमें से कोई सीखने के लिए इंटरेस्टेड हुआ हाँ था? हाँ हाँ हाँ, इंदौर में एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए भजवाया था मैंने। एक मतलब हम्म। ग्रुप था, तो उसमें हम्म। से दो तीन बच्चे आके मेरे पास बोलने लगे कि मुझे वायलिन सीखना है, आप मुझे सिखाओ वगैरह। हम्म। तो एक दिन रुका था, तभी मैंने उनके हाथ में वायलिन देके उनको सिखाया। अदरवाइज हम्म। बॉम्बे टू इंदौर बहुत लंबा है, ऐसा पॉसिबल नहीं। मगर मेरे पास एक दो बच्चे आ जाते हैं विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे सीखने के लिए। ओके। तो जब आपको ऐसे बच्चों को सिखाने का एक्सपीरियंस है, मैं पूछना चाहूंगी आपका अप्रोच कैसा होता है, क्योंकि इन लोगों के लिए द लर्निंग प्रोसेस कंपैरेटिवली स्लो होता है, राइट? हाँ, वो तो स्लो होता है, मगर जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये कलर्स ऑफ वायलिन की वजह से बच्चे लोग जो प्रोग्राम के लिए आते हैं वो भी नया नया एडमिशन हो जाता है प्रोग्राम हम्म। देखने के बाद। और एक हम्म। कहना चाहूंगा कि कई बच्चे हैं ऐसे हैं कि जो गिटार सीखने के लिए आते थे मेरे पास, मेरा हम्म। वायलिन का रियाज सुन सुन के बाद में वो गिटार छोड़ के वायलिन बजाने शुरू कर दिए। ओके। नहीं, मगर मैं पूछ रही थी लाइक ब्लाइंड बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए कैसे होता है, जो लोग सुन भी नहीं सकते हैं, आपका अप्रोच कैसा होता है टीचिंग का? अ, जो सुन नहीं सकते उनको तो सिखाना मुश्किल है, वैसे तो कोई हम्म। बच्चे आए नहीं है। मगर जो हम्म। देख नहीं पा रहे हैं उनको सिखाने हम्म। का एक थोड़ा अलग अलग तरीका, उनको सिखाते सिखाते मैं खुद सीख लिया कि वो कैसे पकड़ना है, उनको कैसे दिखाने का, कि बोइंग इधर ही बजाना है तो कैसे बजाना है। ये हम्म। अलग अलग टेक्निक ढूंढ लिया मैंने। हम्म। ओके। तो अब आप ऑनलाइन कर रहे हैं पैंडेमिक की वजह से, या फिर ये पैंडेमिक के पहले भी था? ये पहले भी पहले से था, पहले ओके। स्काइप सीखते सिखाते सिखाता था। हम्म। ओके, तो जो लोग एकदम बिगिनर्स लेवल के थे, उन लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं होता था, लाइक कैसे इंस्ट्रूमेंट को पकड़ना है एंड ऑल? बिगिनर्स को सिखा नहीं पाते हैं ऑनलाइन, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो बिगिनर्स लेवल का आपके पास नहीं आया था, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड? बिकॉज वो सिखाने के लिए तकलीफ होती है, फर्स्ट ट्यूनिंग करो, अगर ट्यूनिंग उतार दिया तो प्रॉब्लम होता है। ऑनलाइन सिखाना मुश्किल होता ओके पंडित जी, एक ऐसे कॉम्पोजिशन के बारे में बताइए ना जिसके साथ सिखाने की या उसको सीखने की ऐसी कोई कहानी। है। मतलब एक ऐसा कॉम्पोजिशन जिसके साथ आपकी एक अच्छी कहानी जुड़ी हुई है, लाइक उसको सिखाने की या सीखने की, वैसा कुछ। अ, एक बार किशोरी दीदी के घर में हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, तो हाँ। मैंने उनको बोला कि मुझे एक नया सीडी डेडिकेट करना है आपके लिए। तो मुझे पूछा कि कौन सा राग बजाना चाहते हो, तो मैंने बोला बसंती केदार। हम्म। तो बोले कि अरे वाह, बजाओ, कल से तालीम के लिए आ जाओ। तो हम्म। तालीम के लिए गए, बसंती केदार की तालीम शुरू हो गई। तो हम्म। एक 10-15 दिन तालीम हो गई उसकी। बोले कि ठीक है अभी बजाओ। तो मैंने बोला कि मैं इस राग में द्रुत नहीं बजाना चाहता हूँ, विलंबित ही बजाऊंगा। तो मुझे बोले क्यों, बोले जो माही की जो बंदिश है वो बजाने के लिए थोड़ी तकलीफ होती है, तो उसके लिए तो बोले कि ठीक है मैं आपके लिए नया बंदिश बना देती हूँ। और मेरे लिए उन्होंने नया बंदिश कंपोज किया, और उसको मेरे से रियाज करवा के फाइनली मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ये बहुत मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी। ओके, और कोई ऐसा कॉम्पोजिशन जो आपने सिखाया हो? अभी जो आपको सुनाया वही, और हाँ, ऐसे नहीं बहुत उसके नहीं, बाद। रागदारी के ये बहुत बहुत कंपोजिशंस है। नहीं नहीं, मैं कंपटीशन के साथ कहानी की बात कर रही थी। कहानी की बात कर रहे थे। अमेरिका में जब गए थे हम, तो किसी ने हाँ। फरमाइश किया कि दुर्गा राग बजाओ। ओके। तो मैं और मेरा बेटा था अमेरिका में, तो हाँ। दुर्गा बजाने के लिए तो शुरू कर दिया। और जब द्रुत द्रुत बजाने की जब बारी आ गई, तो ऐसे ही स्पॉन्टेनियस मेरे हाथ से एक कंपोजिशन निकल गई और वो उधर बजा दिया। उसका जस्ट मैं आपको खाली मुखड़ा बजा के दिखाता हूँ।
क्या बात है, क्या बात है। तो ये कैसे प्रिपेयर हुआ, एकदम स्पॉन्टेनियस, लाइक एकदम थॉट पे आकर? without any thinking. ओके, ओके। फिर मंची, ये खत्म करने से पहले एक ऐसे एस्पायरेशन के बारे में बताइए जो अभी भी फुलफिल होने को बाकी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे स्टूडेंट्स जो है हम्म, वो बहुत ही आगे वायलिन को लेके जावे। जैसे हम्म, मेरा बेटा है और एक दो चार बच्चे हैं हमारे एकेडमी में जो मेरे हम्म, पास रेगुलर सीखते हैं। हम्म, उनके उनसे आशा है कि ये वायलिन आगे और चला जाए। और हम्म, देखिए आप संगीत सम्मेलन जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे हम्म, कंपलसरी नहीं कि क्लासिकल म्यूजिक हो जाए, मगर जी, सतार, गाना, सरोद, संतूर हमेशा रहता है, बांसुरी रहती जी, है, मगर वायलिन का कंपलसरी नहीं है। तो मैं ये हम्म, चाहूंगा कि इन बच्चों की तरफ से आगे जैसे मैंने मेरे गुरुजी का ये सपना मैं पूरा कर रहा हूँ कि वायलिन को प्रोपोगेट करने के लिए, तो मैं हम्म, यही चाहूंगा कि उन बच्चों की तरफ से ये वायलिन हर हम्म, एक गांव-गांव में, पूरा देश में, पूरे दुनिया में फैल जाए हम्म, और हर एक हम्म। संगीत सम्मेलन में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए वायलिन का परफॉर्मेंस हो जाए। बहुत बढ़िया, और हम आशा करेंगे ये सपना बहुत जल्द ही साकार हो। थैंक यू। ओके, तो फिर आई गेस यहीं हम अपनी बातचीत खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच पंडित जी फॉर डूइंग थैंक दिस, यू। और मुझे अपना टाइम देने के लिए इट रियली मेंट अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, ओके, फिर नमस्ते। नमस्ते। Okay, then. So that was Pandit Milind Riker with us. I really, really hope you enjoyed this session with some wonderful music as well. So thank you so much for tuning in. See you very soon in another episode of Sadhana. Thank you. Take care. Good night.